आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल. Just go behind to the next verse, the previous verse. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. The first one, I will ascend, is self ascension. और पहला मैं ऊंचा होऊंगा मतलब खुद को बढ़ाना, ऊंचा करना, सेल्फ प्रमोशन, अपने आप को खुद को बढ़ाना, सेल्फ एडवर्टाइजिंग, अपना प्रचार करना, प्रमोटिंग योर ओन सेल्फ, अपने आप की बढ़ाई करना, बढ़ाना. इट इज द लूसीफर्स हार्ट. और ये है लूसीफर का दिल. एनीबडी लाइक्स टू प्रमोट योर ओन सेल्फ, इट इज द क्वालिटी ऑफ दिस फेलो. हालेलुया. कोई भी अपने आप को बढ़ाना, बढ़ाई देना चाहता है तो लूसीफर की क्वालिटी है. I will exalt myself. मैं अपने आप को इतना ऊंचा उठाऊंगा. Self exaltation. अपने आप की बढ़ाई मारना. Okay, I am bringing to you why the cross. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्रूस क्यों. So this is how the Lucifer thought in his mind. और ऐसा लूसीफर ने अपने मन में सोचा. I will sit on the mount of the congregation. और मैं जो है सभा के पर्वत पे विराजूंगा. And further it says in 14 and 14 two parts. और आगे 14वें वचन के अगले हिस्से में कहता है I will ascend above the clouds. कि मैं ऊंचे ऊंचे मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा. Self exalting, self glorifying. अपनी महिमा करना, अपने आप को ऊंचा उठाना. Glorifying your own self and praising your own self. और अपनी ही स्तुति करना, अपनी ही बड़ाई करना. Lifting yourself for no reason. और बिना कारण के अपने आप को ऊंचा उठाना. And the last one is the most dangerous. और आखिरी जो है वो बहुत ही खतरनाक है. I will be like the most high. मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा. This is self deifying, making yourself as a deity. और ये जो है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य जानना, अपने आप को ऊंचे स्थान पे रखना. Making yourself like God. और अपने आप को प्रभु के समान समझना. Making yourself equal to God. और उसके तुल्य अपने आप को समझना प्रभु के. Now how did God answer him? अब कैसे परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया? How did God answer him? परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर दिया? He is promoting himself. और वो अपनी बढ़ाई मार रहा है, अपने आप को ऊंचा उठा रहा है. So Jesus humbled himself. यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया. Hallelujah. Hallelujah. If you read Philippians 2. अगर आप फिलिपियों का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे. Let's quickly go to Philippians chapter 2. आइए हम तुरंत फिलिपियों के दूसरे अध्याय पे जाएं. And from verse 5 onwards. और वचन 5 से. Let this mind be in you which also was in Christ Jesus. Yeah. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Go till the cross. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yes, thank you. So here we see, और यहाँ पे हम देखते हैं, as this side the devil is lifting himself and pumping pride and going higher and higher. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे शैतान जो है अपनी बढ़ाई मारता है, फूलते जा रहा है, अपने आप को ऊंचा और ऊंचा करते जा रहा है. So on the other side, as an answer, as a reply, तो दूसरी तरफ से उत्तर के तौर पर, as a response to that statement, और उस वाक्य का प्रतिसार के तौर पर, as a response to the wrong attitude, और उस गलत वृत्ति के प्रतिसार के तरफ, the Bible says he humbled himself. और बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को दीन कर दिया. The devil was full of pride. और शैतान पूरा घमंड से भरा Jesus is था. full of humility. और यीशु मसीह पूरा दीनता से भरा है. And anyone who says I believe in Jesus also should be full of humility. और जो कोई कहता है मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, वो पूरी तरह से नम्र और दीन होना The devil चाहिए. is full of disobedience. और शैतान जो है पूरा अवज्ञा से भरा है. Jesus is full of obedience. और यीशु मसीह आज्ञा
दया से भरा है obedient unto death. और मृत्यु तक आज्ञाकारी बने He रहना। made himself of no reputation. और उसने अपनी हर तरह की जो इज्जत थी, मान सम्मान सब खो दिया। He kept all his titles inside. और उसने अपने सारे नाम, अपने सारे शीर्षकों को बाजू में रख He दिया। put all his titles and all his respects at the side. उसने अपनी सारी मान सम्मान, सारे शीर्षक बाजू में रख दिए। Millions of angels worship him every day. और करोड़ों देवदूत हर दिन उसकी आराधना करते But he हैं, put all that in the side. पर उसने वो सारी बातें बाजू में He रखी। emptied himself, the Bible says. He और emptied बाइबल himself. कहती है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया Took on the form of a servant. और एक सेवक का रूप धारण किया। Look here, the devil is saying, I'll make my throne high. यहाँ शैतान कहता है कि मैं अपने सिंहासन को ऊंचा उठाऊंगा। Jesus is saying, okay, you make high, I will come as a servant. हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं ठीक है, तू अपना सिंहासन ऊंचे पे रख, मैं नौकर सेवक के समान आऊंगा। How fitting was the reply. और कितना अद्भुत उत्तर था वो। This morning I want to just tell you before I proceed. और इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे जाने के पहले। God Almighty is so powerful. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान, इतना सर्वशक्तिमान है। He can in one breath he can destroy the devil. और एक ही सांस में जो है शैतान को नाश कर सकता है। एक फूंक में उसको गायब कर सकता है वो, है ना? He is so powerful. वो इतना सामर्थशाली है, But he did not do that. पर उसने वो नहीं किया। He said, okay, you want to rule everything and you want to become higher than me. और उसने कहा कि ठीक है, तू सब बातों पे राज करना चाहता है, मुझसे भी ऊंचा बड़ा होना तू चाहता है। मेरे से ऊंचा होना चाहता है तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे छोटा बन जाता हूँ. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। और सबसे छोटा बन के उसने हराया उसको. आमेन। आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Jesus did not defeat the devil as being God. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के रूप, परमेश्वर के नाते उसे हराया नहीं। He defeated the devil by becoming a man. और वो मनुष्य होने के रूप में नाते में Hallelujah. शैतान को हराया। So that every man, every woman will know it is possible. तो इसलिए कि हर स्त्री, हर पुरुष जाने कि ये संभव है। So that each one of us can know when we are going through challenges, I can also do it. कि हम सब ये जान जाएं कि जब हम चुनौतियों से गुजरेंगे तो हम भी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is what the purpose of Jesus' death on the cross is. और यही हेतु है यीशु मसीह का सूली पर जान देने का। Who was being very form of God, did not count it robbery to be equal with God. और Philippians मनुष्य के रूप 2:6. मनुष्य जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में वस्तु न समझा। How was Adam living? और कैसे आदम जी रहा था। Many times we don't know, we only know Adam ate the fruit. और बहुत बार हम नहीं जानते, हमें केवल ये पता है कि आदम ने फल But खाया। how was Adam living? पर आदम कैसे जी रहा था। Did you see Jesus doing miracles? और आपने देखा यीशु मसीह ने चमत्कार करते हुए। When somebody cut the high priest's servant's ear, the Peter cut his ears. जब पतरस ने उस महायाजक के सिपाही का कान काट दिया, What did Jesus do? क्या किया यीशु मसीह ने। Just took it up and stuck it again. और उठाया, उसके फिर से चिपका दिया। When the disciples were going in the boat, और जब चेले नाव में जा रहे थे, at that time the Bible says और उस समय बाइबल कहती है Jesus came walking on water. यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए। What is that? और ये सब क्या है। That is exactly how Adam lived. और ऐसा ही आदम जीता था। That is the power and authority which Adam had before he lost it. और खोने के पहले यही अधिकार और सामर्थ्य आदम के पास था। He could heal, he could do miracles, he could do anything. और वो चंगाई दे सकता था, चमत्कार कर सकता था, कुछ भी कर He सकता could था। walk on water. वो पानी पर चल सकता था। The Bible says he had dominion on the sea, on the air, on the birds, on the animals, on everything. और बाइबल कहती है कि उसका अधिकार था पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, हर एक बात के ऊपर उसकी सत्ता थी। He had the authority. उसके पास अधिकार But था। then पर फिर we all know हम सब जानते how the हैं serpent came in the grass. और कैसे सांप आया वहां से
घास में से, and he deceived the Eve. और उसने हवा को फंसाया, And sin came in the whole world और पूरे दुनिया में पाप because आया, Adam and Eve both sinned. क्योंकि आदम और हवा दोनों ने पाप किया। Romans 5:8 says so. और रोमियो 5:8 ऐसा कहता है। Let's read Romans 5:8. आइए हम रोमियो 5:8 पढ़ें। Sorry, 5:12. क्षमा करें, 5:12। It says, wherefore by one man sin entered into the world. Yeah. वहाँ पे से As लिखा by है, one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have. Yes. इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। This is what the Bible says. और ये बाइबल ऐसा कहती है। By one person the sin came into the whole world. और एक मनुष्य के द्वारा पूरे दुनिया में पाप आया। By one person. एक मनुष्य के द्वारा। Through how many people? कितने लोगों के द्वारा? See, the Bible says. देखो बाइबल कहती है By one person. एक मनुष्य के द्वारा। By one, say, by one man. कहें एक मनुष्य के द्वारा। How did sin come into the world? कैसे जगत में पाप आया? By one man. एक मनुष्य के Now द्वारा। listen to me. अब मेरी और ध्यान से सुने। If all the problem is coming by one man, then it will go also through one man. अगर सारी समस्याएं एक मनुष्य के द्वारा आई हैं, तो जाएंगी भी एक मनुष्य के द्वारा। So ऐसा ही और एक मनुष्य चाहिए जिसके अंदर पाप नहीं है, वो सब लेके जा सकता है। हालेलुया। Praise the Lord. स्तुति हो। So तो the Bible says बाइबल कहती है the angel Gabriel came with the greatest assignment and came to the house of Mary. और मरियम के घर में स्वर्गदूत गैब्रियल एक महान योजना लेकर आया, काम लेके आया। And he explained to her how Jesus will be born through her. और उसने उसे समझाया कि कैसे यीशु मसीह उसके द्वारा जन्मेगा। Even Joseph wanted to leave when he came to know that she is with child. और यूसुफ भी उसे छोड़ना चाहता था जब उसको पता चला कि वो गर्भवती है। But God spoke to him in the dream. पर सपने में परमेश्वर ने उससे बात की। While he was thinking, the Bible says, while he was thinking, God spoke. और बाइबल कहती है कि जब वो ऐसा सोच ही रहा था, तब परमेश्वर ने उससे बात So की। this morning I want to tell you, even as you're thinking, God knows your thoughts. You are under the scanner. तो इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते भी हैं, तो परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, आप उसके दृष्टिकोण में हैं। The Pegasus is not on your mobile, but you are under the scanner still. और बड़ा जो एसेस है मोबाइल में नहीं है, पर आप परमेश्वर के स्कैन में अभी भी हैं। And God watches our thoughts. और परमेश्वर हमारे विचारों को जांचता है। So when the time came to pay the price, तो जब समय आया कीमत चुकाने का, Jesus was praying in the garden. यीशु मसीह उस बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे। Lord, just pray for 1 hour. तो उसने 1 घंटा प्रार्थना, He told his disciples. उसने अपने चेलों को कहा 1 घंटा प्रार्थना करो। But what did they do? पर उन्होंने क्या किया? They were sleeping. वो सो गए। That is how much we love prayer. और ऐसा इतना हम प्रार्थना को प्रेम करते हैं। But nevertheless, Jesus prayed for himself. पर और कोई नहीं, पर यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की। And then they came, the arrest happened, and you know the everything. और फिर वो आए और उसे पकड़ा गया, और फिर उसके बाद आप सब जानते हैं। There were 6 mock trials. और ऐसे 6 जो है उसके मुकदमे हुए बंद कोर्ट में. बंद कोर्ट में, In the night time. रात के समय में, When no court is open, that time Jesus was tried. जब कोई न्यायालय खुला नहीं होता, उस समय यीशु का मुकदमा And चलाया the गया। verdict came by morning that crucify him. और सुबह सजा सुनाई गई कि उसे सूली पे चढ़ा दो। This is how fast the court works और- when it is against the truth. और जब वो सच्चाई के विरोध में होती है, ऐसा तुरंत वो काम करती है। And then और फिर Jesus' persecution started. He was disrobed. They put those false clothes on him to mock him. और फिर यीशु का सताया जाना शुरू हुआ, उसके कपड़े निकाल दिए गए, उसे उसका मजाक उड़ाया गया। Then they put purple and a crown of thorns. और फिर उसे बैंगनी और फिर उसे कोड़ों का मुकुट लगाया। And कांटों का मुकुट. And then he was beaten with stripes. और फिर उसे कोड़ों से मारा गया। And the procession went from that place which is called today Via Dolorosa.
और वो जो यात्रा है वहाँ से वो प्रोसेशन चला वहाँ तक गया जिसे हम गोलगोता कहते हैं। And when they came on that mount, और फिर वो जब उस पहाड़ पर पर्वत पर पहुँचे Jesus was crucified among thieves, among sinners. और यीशु मसीह को पाप के साथ सूली पर चढ़ाया गया। And the Bible says और बाइबल कहती है that tomb after Jesus died, और वो कब्र जब यीशु मसीह के मर जाने के we बाद saw Arimathea, a very devout Jew who believed in Jesus. He took the body and buried it in a brand new tomb. और एक नई खोदी हुई कब्र में यीशु के शरीर को गाड़ा गया। Now we'll pause here for a moment. और यहाँ पर हम एक क्षण रुकेंगे। There is a guy called Mr. Savarkar. और सावरकर करके एक व्यक्ति है जिसे हम बोल सावरकर, And he has written a book based on his whatever study he has done. और जो भी अभ्यास उसने किया उसके आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी। And a few years ago they released the book in Mumbai. और बॉम्बे में उस पुस्तक को प्रकाशन किया गया। And it has some theories called swoon theory. यहाँ पे कुछ ऐसे थ्योरी है जिसे सून थ्योरी कहते हैं। And what is the meaning? उसका मतलब क्या है? This Mr. Savarkar says और ये सावरकर कहता है that Jesus did not die on the cross. कि यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे। Okay? What he says? वो क्या कहता है? He says Jesus did not die on the cross. और वो कहता है यीशु मसीह सूली पर नहीं मरे। So because he did not die, और क्योंकि वो नहीं मरे, resurrection का सवाल ही नहीं आता. What he says? वो क्या कहता है? Because he did not die, वो the मरे question ही of नहीं। resurrection doesn't तो come. फिर से जी उठने का सवाल ही नहीं आता। And he says when Jesus was on the cross, और वो कहता है जब यीशु मसीह सूली पर थे he only fainted. और वो केवल बेहोश हो गए And the disciples brought him down, और चेलों ने उन्हें नीचे लाया and in that state brought him to Kashmir. और उस दुर्दशा में उसे कश्मीर में लाया। हाँ, proof है उसके पास. And in Kashmir, Jesus married and settled, and he had 2 और children. कश्मीर में उसने विवाह किया और उसके 2 बच्चे हुए। देखो सावरकर भाई, God knows where he is. और पता नहीं सावरकर कहाँ है, उसके लिए प्रार्थना करें। Okay, this is one theory. और ये एक थ्योरी है। इसको क्या बोलते हैं? Swoon theory. सून थ्योरी। There is another theory now by the same people. और उन्हीं लोगों ने और एक लिखा है, थ्योरी लिखी है। This theory says ये थ्योरी कहती है that when Jesus died जब यीशु मसीह मरे and the body was kept in the tomb, और शरीर कब्र में रखा गया था, then his disciples came in the night और उसके चेले रात को वहाँ आए and they stole the body. और उन्होंने शरीर को चुरा लिया। Okay, and therefore he is not risen. और इसलिए वो जी उठा ही नहीं। समझा क्या? Now the first theory I told you. पहली थ्योरी मैंने आपको बताई How क्या can थी? a wounded man come from Israel to Kashmir walking? और कैसे वो घायल व्यक्ति जो है इजराइल से कश्मीर तक चलते हुए कैसे आएगा? सावरकर ने थोड़ी घेतली असावी. है का नहीं? कुछ लीली होगी उसने थोड़ी। Secondly, और दूसरी in the बात, second theory, और दूसरे थ्योरी में दूसरा theory सुनो अभी. It says the Roman soldiers और वहाँ पे ऐसे वो कहते हैं कि जो रोमियो के सिपाही थे in the night when they fell asleep, और रात को जब वो सो गए, at that time Jesus' disciples और came उस समय यीशु के चेले आए and they robbed the body. और उन्होंने उस शरीर को चुरा लिया। So now let's look at it in a practical way. तो आइए हम उसे प्रैक्टिकल तरीके से देखें। The tomb was like a cave carved in a rock, और वो जो कब्र थी वो एक पहाड़ में जैसे कि खोद कर बनाई गई and थी it has a big stone like of say 500 to 800 kilo ka one big stone is there. और उसको जो है उसको 500 या 600 किलो का इतना बड़ा पत्थर था जिससे उसे बंद किया गया था। It takes lot of people to push it and roll the stone. और बहुत सारे लोगों की मेहनत से उसको पत्थर को सरका के लगाना पड़ा। But according to the theory, पर इस थ्योरी के अनुसार the Roman soldiers were there. और रोमन जो सिपाही थे वहाँ See, the पे थे, tomb was sealed. Okay, the tomb was sealed. और देखो वो जो कब्र थी उसे पूरी तरह से बंद किया गया था। And when the tomb is sealed, the Roman soldiers are there. और जब कब्र को पूरी To तरह guard से it. बंद किया गया है और रोमियो
रोमन जो सोल्जर सिपाही हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। रोमन सोल्जर के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। If anything happens, they will be burnt alive there. तो वहीं का वहीं उन्हें जिंदा जला देंगे अगर कुछ हो गया तो। हाँ, so they are very afraid for their own life also. तो They will not sleep. तो वो अपनी जान के लिए इतना डरते हैं कि वो सोएंगे नहीं। But think, according to these people, the guard slept. और सोचो चलो इन लोगों के अनुसार, बोलने के अनुसार वो जो सिपाही थे वो सो गए। Centurion means 100 soldiers, 100. मतलब सैकड़ों जो सोल्जर सिपाही थे वो 100। सोचो एक पल के लिए कि 100 के 100 सो गए। और जीसस के डिसाइपल्स क्रॉस के इधर आए क्या वो लोग? जब जिंदा था नहीं। तो मरने के बाद सोल्जर का पास तलवार है, भाला है, आएंगे उनके पास? नहीं। But they say that just they came. पर वो कहते हैं कि वो आए। Peter, James, John and slowly they. पतरस, याकूब, यूहन्ना, वो धीरे-धीरे से आए। पत्थर ढक लिया, बॉडी निकाल लिया. And the body was bombed with all that 120 kilos of spices. और 120 किलो उस शरीर के ऊपर लगाए हुए थे। वो उतना निकाल कर सिर्फ बॉडी लेकर चले गए। और फिर सोल्जर्स के इधर से आके धीरे 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 निकल गए। Is it possible? क्या ये संभव है क्या? And after they went, soldiers got up like और moving. उसके जाने के बाद सिपाही उठे सिनेमा के जैसे। ऐसा होगा क्या? It is not possible. ये संभव नहीं है। Okay, I say okay, they took the body. मैं कैसे कहूँ ठीक है वो शरीर ले गए। बताओ मेरे को बॉडी। मुझे शरीर दिखाओ। The body is not to be found. और शरीर तो दिखा ही नहीं। Because that body rose from the dead. क्योंकि वो शरीर मृत्यु Hallelujah. से जीवित हुआ। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत, आपला चॅनल।